व्हाट्स अप। हे हे, कैसे हैं सब लोग? हाय, कैसी चल रही तैयारी? हाउस द प्रेप फॉर नीट गोइंग? इज इट सॉलिड? या, I guess I did the session just to make that poor joke. Khair, we're going to do solid state today. Yeah, as you guys requested, this nice, beautiful purple background is just for all the amazing questions on density. We'll do a little bit of voids. Voids की ज़्यादा चीज़ हम लोग करेंगे next session में, which is on Saturday. एंड और क्या क्या करने वाले हैं हम लोग? आवाज साफ आ रही है भाई? में आवाज साफ आ रही है? यू एबल टू सी मी? या, जस्ट लेट मी नो द चैट इफ दैट्स ऑल राइट. खैर, so we're going to do as many questions as we can in this 1 hour, and then we'll pick it up from here on Saturday. So I have 2 sessions planned for you to completely do solid state in its entirety. इसके साथ साथ हम लोग what else are we going to do? 11th के session भी चाहिए आपको. Mole concept, right? We'll do mole concept as well. We follow that as whatever chapter you want. We saw that according to our SEO data, search engine optimization, etc., you are searching for solid states a lot. So we're like, okay, let's do a session on this. That's why we're here. What's up? Hey Mayuk, good evening. How are you doing? So chalo, let's get started. This is part 1 of practice questions. We'll do as many parts as needed for it. I think for solid state 2 parts काफी होंगे. Shall we start? Yeah. पहला सवाल coming right up on your screen right about now. An easy one. आसान वाला सवाल. What is the number of atoms in a unit cell of a face-centered cubic system, cubic crystal? Hey, Raghav, what's up? Good evening. What do you think? Maybe you already know the answer. बहुत straightforward है. Maybe आपने solid state पहले किया नहीं है. This is the first time you're seeing a question like this. Either way, we've got you covered. हम लोग उसको solve करेंगे आराम से, प्यार से. Shalini saying that the answer is 4 confidently. Raghav also saying 4. Okay, cool. So it looks like it's something that if you have done solid state even एक बार, you'll know this at the back of your mind. Like right away, anybody asks you, you'll give this answer. This is one of those questions, right? Mayuk also saying option A. I agree with all these folks over here. But maybe आपको अगर नहीं idea है, if you want to go over as to how this is derived, let's quickly look at that because we have all these amazing things already made for you, right? Now you'll notice that this thing that I have over here, ये जो drawing है यहाँ पे, yes, Vaishnavi, absolutely, 4 is the right answer. But how do we get to 4? That's what we're trying to decide, right? यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है 2 टाइप्स के एटम्स. नाउ दिस होल थिंग इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, मतलब कि एफसीसी वो लेट मी ओके एनीवे. सो 2 टाइप के एटम्स, एक तो कॉर्नर एटम्स हैं लाल वाले, ओके, एंड द अदर वंस आर फेस सेंटर्ड एटम्स, ओके, दैट्स द ग्रीन वन. सो their contributions are different to a unit cell. What do I mean? Well, they are shared differently between different unit cells. थिंक अबाउट ये जो फेस सेंटर है लाइक द विंडो ऑफ योर हाउस. ओके, विंडो है और उसके बगल में अगर एक और रूम हुआ तो वो 2 ही रूम उस विंडो को शेयर कर सकते हैं. वेल, विंडो या फिर इवन अ वॉल कैन बी ओनली शेयर्ड बाय 2 डिफरेंट रूम्स, राइट? तो दिस इज लाइक दैट. सो इसका कंट्रीब्यूशन होगा हाफ इन 1 रूम या 1 सेल. बट लुक एट द कॉर्नर एटम. अपने रूम के कोने में देखो, और इसको विजुअलाइज करना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, राइट? बिकॉज इस कोने में आपका एक रूम तो है और बगल वाला रूम भी है, और सामने 2 और रूम हो जाएंगे, तो आपके फ्लोर पे 4 रूम हो जाएंगे और ऊपर के फ्लोर में 4 और रूम हो जाएंगे अगर ऊपर वाला देख रहे हो तो टोटली 8, राइट? दिस इज अ बिट ऑफ अ थियोरी थिंग. मे बी ऑलरेडी नो दिस और आपको लग रहा है कि यार ये तो सब मालूम है, पर ठीक है. एनीवे, हम लोग फिर से एक बार कर रहे हैं. 6 एंड सबका कंट्रीब्यूशन है हाफ. Think about this like a window, or corner of the room का contribution है 1 by 8, and there are 8 of these. So you add them both together and you get 6 into 1 by 3, which is 3, and 8 into 1 by 8, which is 1. Good evening, Teerth Raj ji. Raghav, what's up? Azhar Imam agrees with this. Do you like the analogy? मुझे ये प्रैक्टिकल चीजें देख के मजा आता है. This is one of my favorite things, solid state. बहुत मजा आया था. इंजीनियरिंग में this thing called engineering drawing and engineering graphics, and gosh, उसके this is like this times 10 is what is done there, and oof, that's really good fun. बहुत मजा आता है उसको करने में. खैर, anyway, इसका आंसर was 4. Straightforward, easy one to start off with. Let's look at the next question. ये वाला भी थोड़ा डायरेक्ट ही है, just warm up questions, right? Then we'll get into the thick of it. ये वाला सवाल है, the maximum percentage of available volume that can be filled in a face-centered cubic system by atoms is, what do you think? Good evening, Kakashi. Shalini also going with A. ये वाला भी आसान सवाल है. लग रहा है आपको बहुत आसान सवाल है. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. Good, good. Starting off with a couple of easy questions just to get all of you warmed up. Chinnu, Raghav, absolutely right. Absolutely right. A. 74%. How did your friends in the chat get to this 74%? ये नंबर आया कहां से? Okay. Maximum percentage of available volume that can be filled. मतलब कि FCC में हमने उसमें एटम्स डाले. कैसे? कॉर्नर एटम्स, एज सेंटर्ड कॉर्नर एटम्स और फेस सेंटर्ड एटम्स डाले. Now, the maximum space that can be occupied seems to be 74%.
How do you get that, come up with that weird number? Kakashi, Teensraj, all of you saying A, absolutely right, absolutely right. लॉन्ग डेरिवेशन है इसका। मयूख, नहीं यार बहुत छोटा सा है, हम लोग 1 मिनट में कर देंगे, कुछ लॉन्ग वॉन्ग नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो, दैट्स व्हाट आई एम हियर टू गिव यू कॉन्फिडेंस अबाउट। दिस इज, सिंस मयूख पॉइंटेड इट आउट, दिस इज आल्सो अ सेकेंडरी टारगेट व्हिच इज की इट्स इजी, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। हेक्सागोनल का थोड़ा लॉन्ग है, ओके वी वांट टू हेक्सागोनल, आई डोंट थिंक आपके सिलेबस में भी है। या देखो, नाउ दिस इज योर एज लेंथ, ओके, मतलब कि जो सेल है उसकी लेंथ है a, बट उसके अंदर जो जो स्पीशीज है, आई एम नॉट कॉलिंग स्पीशीज, आई एम कॉलिंग स्पीशीज, पार्टिकल एटम्स कुछ भी आया, कुछ भी हो सकते हैं स्पीशीज, उसका रेडियस हो, उसका जो है डायमीटर हो गया 2r, मतलब कि r इस तरफ, r इस तरफ, और r इस तरफ, r इस तरफ। नाउ इट लुक्स लाइक ये बहुत छोटे छोटे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, राइट? यू नो फॉर अ फैक्ट कि अगर ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, मतलब कि जो फेस है, मतलब कि जो हरा एटम है, that will touch these two red atoms, where on this face, मैं हाईलाइट कर रहा हूं कौन सा फेस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यू कैन डू द डेरिवेशन फ्रॉम एनी फेस, ओके। ये करते हैं, टोटल वॉल्यूम इज ए क्यूब, बट उसमें से कितना वॉल्यूम है जो इस सेल्स का होगा? अभी हमने निकाला कि टोटली पार्टिकल्स होते हैं 4, ओके, 4 पार्टिकल्स, एंड ऑल्सो 4 आर इक्वल टू √2a। एनी डाउट्स ऑन हाउ आई गॉट दिस? इट्स ओके, हम लोग थ्योरी करेंगे, मजा करेंगे, आराम से सब कुछ करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। एनी डाउट्स ऑन हाउ आई गॉट 4r इक्वल टू √2a? देखो, इसका हो गया r, इसका हो गया r, तो इस ये आइटम होगा इतना बड़ा, ठीक है, r और r, तो ये 2r यहां पे हो गया, और इसका आधा r इधर, आधा दूसरे सेल में, आधा दूसरे सेल में, ठीक है। तो इस तरीके से 4r √2a कैसे? पाइथागोरस थ्योरम दोस्त, इधर a इधर a, राइट? तो ये हो गया √2a, कैसे? वो भी कर लेंगे, डोंट वरी। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू वट एवर दिस न्यू थिंग इज, या दिस फेस डायगोनल बोलना चाहे तो, और फेस डायगोनल कितना होगा फिर उससे निकलता है √2a, एज सिंपल एज दैट। देखो, कुछ फैंसी चीज नहीं है। अब द पार्ट दैट मयूक वाज सेइंग थोड़ा लंबा हो सकता है, लेट्स सी। फिल्ड वॉल्यूम कितना है? 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, वन स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब टाइम्स 4, वो यहीं पहले लिखा है, ठीक है, 4, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, दैट्स वेयर दिस 4 कम्स फ्रॉम, ओके, एंड देन 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। अब दैट इज द फील्ड वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है? a क्यूब। परसेंटेज फील्ड विल बी ये चीज डिवाइडेड बाय a क्यूब टाइम्स 100। अब ये डरावनी चीज कैसे आ गई? देखो, 4/3 तो वैसा ही था, पाई भी वैसा ही था, और ये 4 था, ये वाला क्या है? दिस इज जस्ट दिस रिलेशनशिप। देखिए, आई रोट 4r इक्वल टू √2a, ठीक है। नाउ मैं हर चीज a की तरह में रख रहा हूं, तो a इज गोइंग टू बी इक्वल टर्म्स ऑफ r 4/√2 टाइम्स r। इसी चीज को हम कर रहे हैं क्यूब, है ना? इसी चीज को हम कर रहे हैं क्यूब, दैट्स इट। कूल। उल्टा लिख दिया क्या हमने? उल्टा तो नहीं लिखा, हाँ, ठीक है। सो वंस यू डू दिस कैलकुलेशन, देन व्हाट यू गेट is this 2√2 pi by 12, which is 74%. Hey Saloni, Hare Krishna, what's up? Vaishnavi, absolutely right, that's the answer. ठीक है, now that was a simple, थोड़ा सा लंबा लग रहा था, but it is doable, right? But here's the deal, 74% filled है, तो खाली क्या है? ये है चैप्टर का दूसरा हाफ, राइट? देखो, हम लोग क्विकली थ्योरी भी कर ले रहे हैं। चैप्टर का दूसरा हाफ इज अबाउट वॉइड्स। वो 74% भरा, तो बाकी खाली में क्या जाएगा? खाली में और भी आयन जा सकते हैं। देखो, these are called octahedral voids, बिल्कुल बीच में, and this is important, ये जो बीच वाला पार्ट है ये खाली होता है। sometimes when somebody says FCC, एक तो कॉर्नर एटम लोग सोचते हैं, which is सही है, और एज नहीं, सॉरी, फेस सेंटर समझते हैं, वो भी सही है, बट sometimes they also put the body center में भी वो एटम डाल देते हैं, और ये सही नहीं है। this is not FCC, this is a void, okay? तो ये है एक void, कौन सा void? octahedral void। ऑक्टाहीड्रल कैसे? हम दिखाएंगे क्विकली एनिमेशन में, बढ़िया एनिमेशन दिखाएंगे। मयूक 26%, सालनी 26, एब्सोल्यूट राइट। हे यूवी, व्हाट्स अप, हाउ यू डूइंग? सो बॉडी सेंटर खाली रहता है एफसीसी में, ये जरूरी बात है। मैंने भी आपकी तरह, मैंने स्टूडेंट, मैंने भी कभी कभी जल्दी में एफसीसी में डाल दिया यार, बॉडी सेंटर में भी होना चाहिए विदाउट थिंकिंग, राइट? बिकॉज अगर ठीक से नहीं पढ़ा है तो ऐसा हो जाता है। खैर, नाउ आई होप यू आर श्योर कि बीच वाला खाली रहता है, दैट्स ऑक्टाहीड्रल वॉइड। और ये जो फनी लुकिंग डायग्राम है, दिस इज एन ऑक्टाहीड्रल, ओके? अलग अलग शेड से मैं कर रहा हूं। तो ये सामने वाले 2 ट्रायंगल फेस, पीछे वाले 2 ट्रायंगल फेस, तो 4 फेस इधर हो गए और 4 फेस नीचे, 4 और 4 8, ऑक्टाहीड्रन, ओके? सो 6 पॉइंट्स से बनता है ऑक्टाहीड्रन, हेंस इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल मतलब टेट्राहेड्रल 4 साइड होगा, एग्जैक्टली, टेट्राहेड्रल 4 साइड होता है। कैसे होता है 4 साइड? देखो, ये हो गए 3, और बीच में देखो हो गया पीछे वाला 4, ठीक है?
एक मिनट, 4 होते हैं कि नहीं टेट्राहीड्रल का? सोचना पड़ेगा। टेट्राहीड्रल में 4 साइड होते हैं? नहीं, टेट्राहीड्रल में तो 1 2, हमने कुछ गड़बड़, अच्छा 4 तो है ना, ये 1 2 इधर, पीछे वाला 3 और नीचे वाला 4। बोले हाँ 4 कहाँ है? टेट्राहीड्रल में ऑब्वियसली 4 होंगे, 4 साइड होंगे। ओके, सो दिस नंबर ऑफ दिस टेट्राहीड्रल ऑक्टाहीड्रल टॉक्स अबाउट नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, वी लुक एट दैट आल्सो। आपको दिख रहा है इट इज, इफ इट इज एंड सेंटर्ड, मयूख, वाओ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एंड सेंटर्ड, यू मीन एज, एंड सेंटर का आपका मतलब क्या है? कैन यू इलैबोरेट अ लिटिल बिट फॉर योर फ्रेंड्स आउट हियर? नमस्कार प्रिंस चंद्र मौर्य, हेलो। एंड सेंटर आप थोड़ा बताएंगे, थोड़ा इलैबोरेट करिए, आपका मतलब क्या है कि एंड सेंटर? एंड तो मैं समझ गया, सेंटर का क्या मतलब है, थोड़ा मुझे बताइए। खैर, ऑक्टाहीड्रल वॉइड यहां पे तो क्लियरली दिख रहा है, देखो सेंटर में। और ये हाउ इज दिस, ये एज वाला सेंटर, ये ऑक्टाहीड्रल वॉइड कैसे हुआ? देखो उसके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, अनदर पर्सपेक्टिव, कि दिस इज, इसमें 2 तो यहां हो गए, बाकी देखिए 2 बगल वाले के हो गए और ये यहां पे हो गया। तो इफ आई टेक अनदर रूम अनदर रूम, अनदर सेल ऑन द साइड दैट लिटरली जस्ट टचेस ईच अदर, ओके, उससे आपको बनेगा एक और ऑक्टाहीड्रल। ये सब देखने में थोड़ा मुश्किल हो रही है, डोंट वरी, हम लोग एक अच्छा सा एनिमेशन दिखाते हैं, तुरंत दिख जाएगा आपको सब, ठीक है। देयर इज वन बॉडी सेंटर, 12 एज सेंटर्स, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स हैं 12। 12 कैसे? एक बॉडी सेंटर और 1/4 टाइम्स 12 यानी कि 3, सो 3 + 1 इज 4 ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स। फिर से लुक एट दिस, एक बार देख लेते हैं, एक बार कूल सा एनिमेशन इस तरफ चल रहा है, देखो अब शांति से देखो 1 मिनट के लिए। हे विकास, हाउ यू डूइंग? लुक एट दिस, सी, ये बना आपका ऑक्टाहीड्रन, ओके, वेरी कूल एनिमेशन, इट शोज यू वेरी क्लियरली कि ऑक्टाहीड्रन मतलब कि 8 साइड फिगर कैसे बन रहा है। एज सेंटर वाला देखो, नाउ दैट्स लाइक 4 ऑक्टाहीड्रन्स टचिंग ईच अदर, राइट, जिसमें उन चारों ऑक्टाहीड्रन के सेंटर हैं ये ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स। तो 3 प्लेन्स में बन रहे हैं, ऊपर वाला प्लेन बना, अब ये बीच वाला प्लेन बन रहा है, बॉडी सेंटर वाला तो हम लोग देख चुके थे ऑलरेडी, बाकी से इसकी बात कर, और देखो लास्ट वाले में भी बनेगा। इज इट ब्यूटीफुल, है ना? एक बार देख लिया तो दिमाग में बैठ गया, अच्छा ऐसा बनता है ऑक्टाहीड्रन। सही है ना, सही है ना? हे अरुण, हाउ यू डूइंग? एंड दैट्स इट, सो लुक एट दैट, नाउ दैट गेट्स अ लिटिल क्राउडेड डजंट इट? 12 एज सेंटर्स और एक बीच में, बन गया वो सारे ऑक्टाहीड्रल वॉइड। तो ऐसे ही आप लोग विजुलाइज कर सकते हैं टेट्राहीड्रल वॉइड भी। टेट्राहीड्रल वॉइड कितने होते हैं? ईच फेस सेंटर्ड एटम इज शेयर्ड बाय 2 एडजेसेंट यूनिट। हाँ, यस राघव, एब्सोल्युटली, गुड जॉब। टेट्राहीड्रल वॉइड होते हैं 8, यानी कि 2n, 2n। टेट्राहीड्रल वॉइड इसमें कहां होंगे? अगर देखो इसमें, इफ यू लुक एट दिस वन, राइट, टेट्राहीड्रल वॉइड इस फिगर में देख सकते हो, देखो ये जो है छोटा वाला सेल, राइट, ये जो है 8 साइडेड फिगर छोटा वाला, इसका अगर मैं सेंटर लूंगा, दैट इज अ टेट्राहीड्रल वॉइड। कैसे? देखो लाल वाले देखो, येलो वाले मत देखो, लाल वाले से ही ड्रॉ करते हैं, लाल येलो वाले मत देखो, येलो वाले आर वॉइड्स, ओके, लाल इज एक्चुअल एटम्स, और देखो 4 एटम्स हैं फॉर द मिडिल गाइड टू कनेक्ट विद, ओके, और ये मिडिल वाले जैसे कनेक्ट करता है तो ये बन गया आपका टेट्राहीड्रल वॉइड, ओके, और टीवी। तो ऐसे जो 8 छोटे छोटे यूनिट सेल बड़े यूनिट सेल के अंदर, यूनिट सेल नहीं बोल सकते, छोटे छोटे क्यूब्स बने इनसाइड द बिग यूनिट सेल, उसके सेंटर में होते हैं टेट्राहीड्रल वॉइड। हो गई पढ़ाई, हो गया क्लियर? टेट्राहीड्रल वॉइड क्या होता है, ऑक्टाहीड्रल वॉइड क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक में होते हैं 4 टोटल एटम्स या पार्टिकल्स, उसमें होते हैं 4 ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स, यानी कि n is to n, और टेट्राहीड्रल वॉइड्स होते हैं 8, यानी कि 2n। ओके, दैट्स इट। चलो पूरा चैप्टर खत्म हो गया 10 मिनट में, 13 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म, राइट? अब डेंसिटी वाला पार्ट बस बाकी है, वील सॉल्व दैट वेरी सून। खैर 74% इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ यू गॉट इट राइट। थोड़े वार्म अप क्वेश्चन से चलो अब शुरू करते हैं काम। The radius of the largest sphere, which fits properly at the center of the edge of a body-centered cubic unit cell is, what do you think? Mayuk, अच्छा, if atom located at the edges, alternate edge of the cube. आपकी बात समझा मैं। हाँ, तो वो भी हो सकता है, sure, that's also possible, Mayuk. We'll look at a question, in fact, that does something like that. We'll look at a question, उसका हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। What if मतलब आपका what is the question, Mayuk? End centered if the atom is located. And what is the question? What is the follow-up? I didn't understand if what. खैर ये सवाल ट्राई करो। If the radius of the largest sphere which fits properly at the center of the edge of a body-centered cubic unit cell is, बताइए, सोचिए। Do you need a hint to solve this question? थोड़ा सा हिंट दो या आप कर पाएंगे? बॉडी सेंटर्ड यानी कि कॉर्नर में एटम्स होंगे और बॉडी सेंटर में एटम होगा, सो व्हाट विल टच द कॉर्नर्स? कॉर्नर के बाद नेक्स्ट होगा बॉडी सेंटर, फिर नेक्स्ट होगा ऑपोजिट कॉर्नर,
तो इन तीनों को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो बन जाएगा बॉडी डायगनल, नॉट फेस डायगनल, बॉडी डायगनल। बॉडी डायगनल इज √3a, है ना? तो √3a विल बी इक्वल टू 4r। याद आ रहा है? याद आ रहा है? ये याद आ रहा है? थोड़ा डायग्राम बना के दिखा दूं क्या? डायग्राम बना के दिखाता हूं। शालिनी सेइंग ए, चलो देखिए, ये मैंने बनाया डायग्राम, ठीक है, ये वाला, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। ओके, नाउ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड फॉर इज द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर। देखिए ऐसा सेटअप तो हो गया। तो अगर ये टच कर रहे हैं, अगेन द रेडिश कलर, लेट मी यूज दैट, इफ दिस इज द अदर स्फीयर, तो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा, लेट्स यूज दिस कलर हियर, दिस स्मॉल गैप ओवर हियर बिटवीन दीज टू कॉर्नर एटम्स, वो कितना बड़ा उसमें एटम फिट हो सकता है, वही पूछा जा रहा है। तो इस छोटे वाले का हम रेडियस लें स्मॉल r, और बड़े वाले का ले रेडियस कैपिटल R। तो यू हैव टू बेसिकली सॉल्व फॉर r इन टर्म्स ऑफ a, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अच्छा, मयूक इज सेइंग a, वैष्णवी इज आल्सो सेइंग a, राघव इज आल्सो सेइंग a। हम लोग उसको धीरे धीरे करते हैं, ठीक है? जब तक आप लोग ट्राई कर रहे हो मैं एक एक स्टेप को दिखाता रहता हूं, ठीक है? चंदा मौर्य says D. Okay, all right. Now we have a bit of a divergence between what is happening in the chat. That's always welcome, always welcome. देखते हैं, √3a equal to 4r, ये पहला इक्वेशन तो डायरेक्ट है। मैंने बिफोर यू स्टार्टेड दिस क्वेश्चन मैं धीरे धीरे आपको बताया, राइट, कि ये है बॉडी डायगोनल को टच करता है, बॉडी डायगोनल इज √3a, कितना 4r, एटसेट्रा दैट यू सी ओवर हियर। दिस इज अ बेसिक आइडिया ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम्स। नाउ लुक एट दिस, ये जो एज सेंटर है, अरे इसमें तो दिख ही नहीं रहा, येलो और ब्राइट ग्रीन, डार्क कलर यूज करते हैं। ये देखिए, इफ आई टेक दिस, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये तो हो गया आपका एज सेंटर यानी कि ए। अगर ये डिस्टेंस एज सेंटर हो गया, देन आई कैन से दिस रिलेशनशिप होल्ड्स ट्रू। इस रिलेशनशिप से आप निकाल सकते हैं कि देखो, नाउ यू हैव वन वेरिएबल एंड वन इक्वेशन। हाउ? ये जो है यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन, राइट? 2r इज इक्वल गोइंग टू बी इक्वल टू √3a by 2, यही मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ आफ्टर यू सब्स्टिट्यूट दिस, देन एंड देन ऑन c बोल रहे हैं आप, सलोनी c बोल रही हैं, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। Saloni, I know what we did. Kakashi, yes, D looks like is the right answer. We are converging towards D. How? ये 2r यहां पे लेना था सलोनी, मे बी आपने r लिया, इसलिए this did not work out, ठीक है? So r will be equal to simply a into 1 by 2 minus √3 by 4, and take a calculator and try it out if you want. 0.5 minus 1.73 by 4, मतलब आधा और आधा से थोड़ा कम से कम, ओके? So what this is showing, मैथ्स अगर आपको पसंद है तो दिस इज अ लिटिल लेस देन 2 by 4, ओके, लिटिल लेस, बहुत 5.5 से बहुत थोड़ा सा कम। सो इट इज गोइंग टू बी समवेयर बिटवीन, ओके, ऑल द ऑप्शंस, इट डजंट हेल्प, वो जो मैं सब कहानी बता रहा डजंट हेल्प, ऑल दीज ऑप्शंस आर वेरी स्मॉल, सो ऑल ऑफ दीज थ्री कुड बी राइट। इसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस चंदा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड एक्सीलेंट वर्क ऑन फिगरिंग इट आउट इतनी जल्दी, चंदा, एक्सीलेंट वर्क। ककाशी एंड शालिनी आल्सो चेंज आंसर टू डी। डू यू गाइस सी हाउ दिस आंसर इज करेक्ट? नाउ सी, हम लोग PYQ नहीं कर रहे, मतलब we can do any question we like, and I'm giving you questions that are slightly difficult, but यही तो मजा है सवाल करने का, है ना? Are you able to figure this out? है ना? D हो गया ना? ठीक है, no problem. But this is okay. ये handwriting थोड़ी small हो गई, sorry, I did not realize लिखते वक्त ही, so लिखने में मजा आता है ना आराम से, so that happened. I will make sure कि थोड़ी बड़ी हो. Okay, hey बैग जी, okay, you follow, everyone's all right कि how D is the right answer on this one, ठीक है? Cool. Shall we move on to the next question? D आ रहा है? Excellent work, excellent work. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाँ, गुड जॉब ककाशी, गुड जॉब। लेट्स गिव यू अ बिट ऑफ अ ब्रीदर, थोड़ा सा मैथ्स हो गया, इसको देखते हैं। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल देखते हैं। हे रॉकस्टार, ये जल्दी होने वाला सवाल है। Which of the following statements for crystal having Schottky defect is incorrect? Schottky defect में incorrect statement चूज करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, incorrect statement, not the correct statement, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ध्यान रखना, पढ़ो, ट्राई करो, व्हाट डू यू थिंक, कौन सा होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट? यू वांट मी रीड द क्वेश्चन आउट फॉर यू? आई कैन डू दैट। Schottky defect arises due to the absence of cations and anions from positions which they are expected to occupy. ये वाला तो सही लग रहा है, that's the definition Schottky का। The density of crystal having Schottky defect is smaller than that of a perfect crystal. Okay, Schottky defect is more common in covalent compounds with higher coordination number. The crystal having Schottky defect is electrically neutral as a whole. अच्छा, अच्छा, सोच के बताओ, what do you think?
व्हाट डू यू थिंक? ऑप्शन सी फॉर श्योर। अच्छा, मयूक काफी कॉन्फिडेंट होते हुए बोल रहे हैं ऑप्शन सी, और राघव भी बैकअप कर रहे हैं मयूक को। शालिनी एंड रॉकस्टार आर ऑल सेइंग सी। मस्ट बी सी, मस्ट बी सी। खैर, फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर अदर व्यूअर्स, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली शॉर्टकी डिफेक्ट। एग्जैक्टली एज इट सेज, ये ऑप्शन ए ही डेफिनेशन बता रहा है। दोनों वैकेंसी हो रही है एनायन और कैटायन की इक्वल वैलेंसी, तो न्यूट्रल है कंपाउंड, व्हिच मींस ये वाला भी हो गया, ये वाला भी सही हो गया, सही हो गया। अब देखिए, जाहिर है कि एनायन और कैटायन दोनों निकल गए, यानी कि मास हो गया कम, वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो डेंसिटी भी हो गई कम, तो ये वाला भी सही हुआ। अरे ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला भी सही हुआ, है ना? डेंसिटी कम हो जाती है। दैट्स द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट, एंड इट्स अ प्रीटी गुड कंडक्टर। इट्स अ प्रीटी, दे ऑल प्रीटी गुड कंडक्टर्स। ये इस सवाल में पूछा नहीं गया, बट दे आर गुड कंडक्टर्स। तो देखिए, इवन इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस स्कैरी वर्ड थिंग की कोवेलेंट है, नहीं मालूम है, फिर भी आप कर सकते हैं एलिमिनेशन से। ओके, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टीच यू हियर इन ऑल ऑफ दीस थियरी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एलिमिनेशन अगर पॉसिबल है तो करो, जो मालूम है उसको करो, डरो मत सवाल से। ओके, कर पाओगे आप। ओके, एक्सीलेंट। साई, काकाशी, एवरीवन सेइंग सी, एक्सीलेंट वर्क। चलो अगला सवाल देखते हैं। एवरीवन हियर वाज राइट। द स्मॉल थिंग आई वांट टू टेल यू हियर इज बिकॉज for this to work, there is a very small difference between the anion and cation size, and these are all ionic compounds. That's why this option C is incorrect. ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट वन, how many number of atoms are effectively present in a cubic unit formed by an arrangement of 8 BCC unit cell? And as a hint, मैंने BCC आपके लिए ऊपर बना के दे दिया है। सेम चीज अपनी हमने देखी थी, तो इसलिए फिर से बना के दे दिया। आप बोल रहे हो यार बहुत सवाल हो रहा है BCC पे। हाँ, हम लोग BCC को इनसाइड आउट खत्म कर देंगे एक बार, ठीक है? How many atoms are effectively present in a cubic unit formed by an arrangement of 8 BCC unit cells? मयूख, oh my God, इतनी जल्दी ये सवाल देखा हुआ है, इतनी जल्दी कैलकुलेट है। इधर गुड जॉब। नाउ एज अ हिंट, मैं जो आपके साथ कर रहा हूं, व्हाट वी हैव डन बिफोर, अभी जो हमने पहले सवाल किए, दैट विल बी यूजफुल ओवर हियर। पहला दूसरा सवाल मैंने किया था ना, दे आर ऑल लिंक्ड, दे आर ऑल लिंक्ड, इट्स लाइक अ ब्यूटीफुली वोवन स्टोरी। सोचो इसके बारे में। राहुल आल्सो सेइंग सी विद अ क्वेश्चन मार्क, चलो देखते हैं। रॉक्स्टार आल्सो सेइंग सी, ओके ओके, ऑलराइट, वील सी, we will see. Shalini also saying C. अरे यार, सब लोग बोल रहे हैं C, तो C होगा आंसर। But how do you guys arrive at C? Chanda also saying C. Good job, good job. How do you guys arrive at C? देखिए, let's go back a little bit. Go back a little bit. इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है? अभी 8 बने कैसे? Take the same thing, make it repeat twice, make it repeat. उसको जो है 4 गुना करो और फिर make it totally 8 things, ठीक है? अब बन गए ऐसे 8 BCC unit cells, ठीक है? Sai also saying C. Excellent, excellent. Kakashi also saying C. Everybody saying C. Mayuk, Z into number of unit cells. Ah, does that work? So can you do that? 2 into 8, which is equal to 16. अरे वाह, beautiful, beautiful. ये तो बहुत simple सा तरीका है. And that's the easiest one. Yes, yes. Chanda, I think you already said, hey Poonam, good evening. आपने तो C already बोल दिया था, फिर आप B बोल रहे हो Chanda. You think the answer is different? It's changed? Okay, ठीक है. Yeah, great Mayuk. That is a beautiful way to do it. I'm going to take you through an amazing journey where I'll show you another way to do this. Okay, another way to do this. How you can see this like FCC. Okay, BCC को आप FCC की तरह देख सकते हैं in a way. ठीक है? Hold on to yours. I'll tell you कैसे. देखिए. Now इसमें totally 8 तो होंगे body centers, right? BCC मतलब body center है, मतलब 8 होंगे ही होंगे। 8 unit cell है, तो 8 for sure उसके body centers होंगे. So we can count 8. Okay. देन ये जो व्हाइट वाले हैं उनको फिर काउंट करते हैं, वो सबसे कोने वाले, लाइक द स्मॉलर वंस बट सबसे कोने वाले। सो देयर आर 8 ऑफ दीज मार्क्ड विद दिस, सो दैट इज 1/8 into 8, तो ये हो गया 1। हाँ, अब क्या करें? ये तो आसान था, अब क्या करें? अब देखिए, नाउ दिस लुक्स लाइक जो एफसीसी था और फेस सेंटर्स थे उसी की तरह दिख रहे हैं ये वाले। आई विल यूज अ डिफरेंट कलर हियर। येलो तो दिखेगा नहीं येलो के ऊपर। ये देखिए, दिस गाय हियर, दिस गाय हियर, दिस गाय हियर, दिस गाय हियर, this guy here, this guy here, है ना? तो ये हो गए फेस सेंटर्स, है ना? और हमारे एज सेंटर्स भी हैं। एज सेंटर मतलब कहां गए, कौन सा कलर यूज किया जाए? रनिंग आउट ऑफ कलर्स। देखो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ऑल ऑफ देम आर बेसिकली कॉर्नर्स ऑफ द स्मॉलर यूनिट सेल्स। तो दिस इज लुकिंग अ लॉट लाइक एफसीसी, जिसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड सब भरे हुए हैं, सब भरे हुए हैं। देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वही होगा 1/4 into 12 because of the edge centers, edge मतलब ऑरेंज वाला, ठीक है? और 1/6 into face, which is this dark blue, which इधर नहीं दिख रहा है इधर। Let me mark it around over here, ठीक है? Yes. So इन दोनों को आप add up करोगे तो you got 8. Let me get back to my good old yellow. 8 plus 1, which is 9, and then this plus this is equal to 3,
and this again is equal to 3. Okay, so that's 6 plus 9, 15. नहीं, 6 plus 9 is 14 plus 1, 15. 15 हो गए, 15 हो गए, 16 होना चाहिए. All of you are saying 16. 16 should be. Where is the 16th one? देखो, right in the center. जो सारे कॉर्नर एटम्स के बिल्कुल बीच वाले थे, हमने एक्सट्रीम वाले देखे, अब सेंटर वाले देखो. राइट इन द सेंटर ऑन दैट डार्क ऑरेंज वाला कलर, बहुत डार्क ऑरेंज है. अब यहाँ पे हम आई एम रनिंग आउट ऑफ कलर्स. दिस गाय राइट इन द सेंटर, ये पर्पल कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है. दैट इज +1. तो देखो इस तरीके से भी हो गए 16. या सी इज द करेक्ट ऑप्शन, एब्सोल्युटली राइट. सी तो है ही, और आपने जो तरीका बोला, yeah, is the best way to do it. Good evening, Poonam. I think already said that. Yeah, is Z into number of unit cells. That's the easiest way to do it. Mayuk did it beautifully. But I just wanted to see कि अगर आप BCC को repeat करो, it looks like it forms FCC with all the voids filled. मतलब कि CaF2 structure. Okay, calcium fluoride का जो structure है, उसमें है TV filled. But इस टाइप का चीज does not really exist. So I shouldn't give you an example. ये hypothetical idea है. इस टाइप का एग्जांपल जहां टेट्राइडल वॉइड और ऑक्टेल वॉइड सब भरे हो, आई कांट थिंक ऑफ वन राइट नाउ, बट जस्ट अ मैथमेटिकल आइडिया फॉर अस टू थिंक अबाउट. ठीक है, ऑलराइट, चलो अगला सवाल देखते हैं. दिस वन यू लाइक. अ सब्सटेंस, सिंपल है इसीलिए. अ सब्सटेंस AXBY crystallizes in a face centered cubic lattice which atoms A occupy each corner of the cube and atoms B occupy centers of each face of the cube. Identify the correct composition of the substance AXBY. फॉर्मूला निकालने वाला है. You like doing this, straight forward लग रहा है ना, कर सकते हैं आप लोग, try it out. इसके बाद हम लोग एक और इंटरेस्टिंग वाला भी, इसका वेरिएशन भी एक देखेंगे. या we'll start with a simple one, then इसका थोड़ा सा वेरिएट करके we will check it out. Try it out, try it out, try it out. मजेदार है. What do you think? Do you need a hint with this one? थोड़ा hand, you need a hand with this? सोच के बताइए. I'm here to help if you do. I'll give you maybe 30 more seconds to try it out. I think उतने समय में तो हो ही जाना चाहिए, right? Because if you got that initial वाला part सही, which was 4 था जो आप लोग कर रहे थे, and all of that, then this should be very easy to do. Try करो, try करो. Let me get back to chat and see. A is what Shalini is saying. Poonam is also saying A. Okay. Do you need some more time to try it out? I can do that if you do. What's happening? So the whole crystal now in this case, देखो पूरा crystal जो है crystallize कर रहा है FCC lattice में. यानी कि ऐसा नहीं है कि A occupies all FCC lattices, ऐसा नहीं है कि B occupies all FCC lattice. A और B मिलजुल के साथ में they occupy the FCC lattice. अब ये FCC lattice क्या होता है? FCC lattice is that same thing ना, corner atoms, face centered atoms. अब इसमें बस ये है कि corner atoms are occupied by which one? A, and the face centered atoms are occupied by B. यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो A का कुछ और होगा, B का कुछ और होगा. इससे आप फॉर्मूला निकालोगे. Let's do that now. Let's do that now. Kakashi is saying A as well. Poonam is saying A, and so did Shalini. I'm inclined to say that. Good job. That should be the answer. Now you see, मैंने दो अलग कलर यूज किए हैं. A is shown by this light, creamish kind of color, and B is shown by this red color. Okay, जो face centered बना है and all of that. So in this case, clearly A का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 8 टाइम्स 1/8, क्योंकि कॉर्नर वाला एटम है ना. B का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा 6 into 1/2, ये फेस सेंटर्ड है, जस्ट लाइक द विंडो एंड द कॉर्नर. मैंने बताया था कि सारे सवाल एक दूसरे से लिंक्ड है. मैंने जो पहला सवाल किया था, दूसरे सवाल में मैंने एक्सप्लेन्ड दिस टू यू इन डिटेल. विंडो वाला 4 एटसेट्रा कैसे होता है. दिस हाउ वी डिड दैट, राइट. नाउ फ्रॉम हियर व्हाट डू यू डू? A is to B is simply going to be equal to 1 is to 3, यानी कि A B3, and all of you are absolutely right. Mayuk, yes, correct, बिल्कुल सही है. इसका आंसर A B3. No doubts, right? We'll move on to the next question. डायरेक्ट था. अब चलो करते हैं वो वाले सवाल जिससे सबको लगता है डर. I'm going to prove to you कोई डरने की बात नहीं है, बहुत आराम से करने वाली चीज है. For a unit cell, edge length equal to 5 angstrom. The element of atomic mass 75 मतलब 75 U बोल सकते हैं, या 75 gram per mole, either way the same thing, has density of 2 gram per cc. Calculate the radius of the element. अब डेंसिटी का एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले में कुछ डरावनी चीजें हैं, बट आई विल टेल यू अ वे टू नॉट लेट दैट पुट एनी प्रेशर ऑन यू. हम लोग आराम से करेंगे. ट्राई इट आउट. आप लोग पहले कोशिश करो, एंड आई विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ टिप्स जिसकी वजह से इस टाइप के सवाल आपको लाइफ में कभी दिक्कत देंगे ही नहीं. ओके, ट्रस्ट मी ऑन दिस, कभी भी नहीं, बिकॉज दिस इज वेरी डूएबल. चलो अब ट्राई करो
टेक अ मिनट टू ट्राई इट आउट. इट्स 6:30 एग्जैक्टली. टेक टिल 6:31 टू ट्राई इट आउट. इस टाइप के सवाल में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे. टेक योर टाइम. आई गिव यू होल मिनट. एक पूरा मिनट दिया जाएगा आपको. तब तो हम लोग टाइम पास की बातें कर सकते हैं करना चाहे तो. बट आई प्रेफर इट इफ यू यूज दैट टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. डेंसिटी का फॉर्मूला याद नहीं है मयूक? आई विल हेल्प यू आउट हियर. ओके, दो चीज में आपको हेल्प करूंगा. ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला याद है आपको, ट्रस्ट मी आपको याद है ना. पहली चीज B1 डेंसिटी. ओके, इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए. ये है एंगस्ट्रॉम में, ये है क्यूबिक सेंटीमीटर में. तो वो एंगस्ट्रॉम को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में. ओके, कैसे? एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻10 मीटर, यानी कि 10⁻8 सेंटीमीटर. पहला काम, यूनिट सेम होनी चाहिए. कोई भी आप फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल कर रहे हो और फिजिक्स का यूनिट सेम रखो. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, डेंसिटी का एक फॉर्मूला है. आई एम नॉट सेइंग दिस टू मेस विद यू. यही एक फॉर्मूला है. With this one formula where density is total mass by total volume, you can solve it. That is it. अब total mass कैसे निकलेगा? Total mass is total number of particles into mass of one particle, है ना. और atomic mass की बात हो रही है तो जाहिर है 75 होगा. तो 75 into n हो जाएगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर हो जाएगा a क्यूब. खत्म. खत्म है ना मयूक? कांचन, hey good evening. Yes मयूक, try it out now with that. That's it, dude. You don't have to remember any of that. Oh, n है ये, कुछ नहीं भाई, बहुत सिंपल है. Density is total mass by total volume. That's it. Total mass क्या होता है? Number of particles in that unit cell times the atomic mass which is given to be 75. Denominator क्या है? A cube. सब चीज A के तरीके में करो. R बार को बाद में डाल देंगे. पहले अभी A cube लिख लो. ठीक है? सलोनी जी बोल रही हैं C. ठीक है, cool. Let's take it with that. Shall I go on and help you out with this one? अगला वाला आप लोग कर लेना. मैं ये वाला हेल्प करता हूँ. Alok, hey, what's up? Since this is a teaching come what do you call it, a practice session, ये वाला मैं आपको हेल्प करता हूँ. Kakashi saying B, good job. आप लोग ट्राई करो, मैं थोड़ा बहुत हेल्प भी करता रहता हूँ. Kanchan saying C. देखो, यही चीज जो मैंने बोली वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. Nothing fancy. ठीक है, बट लुक एट द मैथ्स दैट आई डिड. द डिनोमिनेटर में वॉल्यूम A क्यूब होगा एक यूनिट सेल का. बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि मास होगा 75 ग्राम, then I will have to make this into mole. So volume होगा एक मोल का कितना? A cube times Na, which is 6 into 10 power 23, right? अभी ले लेते हैं 6, ले लेते हैं 6. 6.021, let's take it as 6. ठीक है, अब देखिए, this is going to be equal to 2. ये मैंने यहाँ पे राइट साइड में लिख लिया. Everybody okay with the formula thing that I'm writing? आलोक बोल रहे हैं आंसर इज C. डॉक्टर अजहर जी बोल रहे हैं आंसर इज B. ठीक है, राघव इज ऑल्सो सेइंग C. ठीक है, चलो देखते हैं. तो इस वे, इस फ्रॉम दिस वे, नाउ लुक एट दिस मैथ. मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट के लिए. चंदन इज सेइंग एक मिनट के लिए बस मेरी बात सुनिए. देखिए 5 into 10 power minus 8. ओके, एंड दिस हैपेंस विद एवरीथिंग. इफ यू डू इट इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, ये हर समय ऐसा होगा कि कैंसिल आउट हो जाएगा. देखना 5 into 10 power minus 8 into Na, इसका क्या वैल्यू होगी? देखो 5 into 10, this whole cube will basically become 125 into 10 power minus 24. और इंटू Na कितना होगा? इंटू 6 into 10 power 23. अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया ना. दिस जस्ट बिकम्स 10 power minus 1, यानी कि इसको हटा के 10 power minus 1 हो गया, है ना. दैट्स इट. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बहुत सिंपल है. जस्ट ध्यान से करने वाली चीज है. ओके, पूनम गिविंग अस द आंसर एज B. शालिनी आल्सो गोइंग विद B. वंस यू डू दैट, ये वाला सिंपल वाला मैथ करने के बाद अब एक बार दूसरी तरफ ले जाओ n को. ठीक है, तो यही 125 into 10 power minus 1 यहाँ पे लिखा है मैंने. आई हैव लेफ्ट 6 एज दिस into 2/75. इसको आप करने के बाद if you calculate this, you will get a nice and neat number 2, यानी कि ये है BCC. अब आया नेक्स्ट स्टेप. अगर BCC है, what is the next step? Then you have a relationship between R and A, because at the end of the day you have to figure out atomic radius क्या है. atomic radius कैसे आएगा? atomic radius has to be related with A, because आपको वैल्यू A की दी गई मेरे सर के ऊपर, राइट? सो √3A is equal to 4R, एंड R की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो. बस यहां से तो डूएबल. कर लो, कैलकुलेटर है तो कर लो, बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हो. R कितना होगा? √3 times 5/4. So √3 is 1.73 into 5/4. तो 1.73 से into 1.25, ये इस तरीके से भी कर सकते हो. ठीक है, मतलब जाहिर है कि दिस इज द क्लियरेस्ट आंसर. 200 के आसपास ही होगा. इट कैन नॉट बी 300, जस्ट लाइक दिस. ओके, ठीक है, √3A4 एग्जैक्टली. युवराज, गुड टू सी यू. आई डोंट थिंक आई हैव सीन यू अराउंड हियर बिफोर. गुड दैट यू एक्टिव इन द चैट. ओके, ठीक है. नाउ देखो, इससे हो गए सारे डेंसिटी के सवाल. डेंसिटी इज वेरी डूएबल. थोड़ा टाइम लगता है करने में, बट यार
यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू विल ऑलवेज गेट दिस राइट। एक बार हमने इसको आराम से किया, दो चीजें नोट करने की थी फॉर्मूला में, राइट इट लाइक दिस, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम में मेक श्योर यू पुट द Na एंड दिस इज A क्यूब। ओके, यही मैंने सब्स्टिट्यूट किया है। व्हाट इज वॉल्यूम? दिस इज Na टाइम्स A क्यूब। ओके, when you're calculating A cube, make sure you write A, small a, in centimeter. कैसे? इस तरीके से, एंगस्ट्रॉम इज 10 पावर माइनस 10 मीटर, मेक इट 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। उसको कैंसिल आउट हो जाता है। कैसे कैंसिल होता है? फिर से लिख देता हूं, बिकॉज इन एवरी क्वेश्चन यू विल हैव दिस। ओके, 5 into 10 power minus 8 whole cube, 5 into 10 power minus 8 whole cube into Na. Okay, this gives you 125. मेरे पीछे जा रहा है ये, बट ठीक है। 10 power minus 24 into 6 into 10 power 23, है ना? तो ये हो गया कैंसिल, बचा 10 power minus 1. That's it. And this is going to happen in every question. Okay? It's okay. It's okay. मिस्टेक एक बार हो गया, अब नहीं होगा, अब लाइफ में नहीं होगा। डोंट वरी अबाउट इट। एक बार हो गया तो हो गया यार। Yes, this is for NEET 2024, 25, 26. जब भी नीट देना है, this is for NEET and for JEE. The formula is the same. Okay? नीट हो या जेई हो, यही होने वाला है। ठीक है? डेंसिटी में और कुछ नहीं कर सकते। This is it. इसलिए बोल रहा हूं यार, आसान चीज है, कर लो। सॉलिड स्टेट में डेफिनेटली मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है? ऑल राइट, 216.5 is the answer to that one. अगला सवाल लेते हैं। भारी हो गया वाला, थोड़ा सा लेट्स स्टेप इट डाउन अ लिटिल बिट। एक थियोरेटिकल सवाल लेते हैं, बट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। AgCl is crystallized from molten AgCl containing a little CdCl2. The solid obtained will have cationic vacancies equal to number of Cd2 plus ions incorporated. Cationic vacancies equal to double the number of Cd2 plus ions. Yeah, anionic vacancies, neither cationic nor anionic vacancies. All right, great Unraj. You got, हाँ वही, अरे मयूक भाई चलता है, वो चलता है। ऑप्शन है ना, 200 के आसपास जाएगा। मैंने तो कैलकुलेट भी नहीं किया। यू एटलीस्ट कैलकुलेट 2.18, 218। मैंने बोला कि इट इज 1.73 टाइम्स वट एवर, यू नो व्हाट आई सेड इन दैट वन। आई विल गो बैक टू दैट। एक बार बता देता हूं, क्योंकि अगर वो इनकम्प्लीट लगा इन एनीवे। देखो, आई डिड दिस इज 1.73 इंटू 1.25 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। अब ये इंटू 8 माइनस 8 सेंटीमीटर हो गया 10 पावर माइनस 10 मीटर, है ना? तो इसको अगर 2 और 0 निकाल दो तो 10 पावर माइनस 12 मीटर करने के लिए, तो ये हो जाएगा 173 इंटू 1.25। ये वाला पार्ट मैंने एक्सप्लिसिटली बोला नहीं, तो हेंस आपको मिलता है 216। ठीक है? अप्रोक्सीमेटली यही आंसर है जो मैच करा, बाकी वो है ही नहीं, बाकी ऑप्शन में नो वेरी क्लोज। चलो ये वाला सवाल देखते हैं। सही आंसर कहां गई थी अब आप? तो ओके, मयूक इज सेइंग ऑप्शन ए फॉर श्योर। ओके, पूनम इज सेइंग ए एज वेल, राघव इज सेइंग ए, अजहर इज सेइंग सी, चंदन इज सेइंग बी। क्या होता है इसमें, देखते हैं। ओके, लेट्स सी। देखो, अगर AgCl निकल रहा है और Cd जबरदस्ती अंदर आ रहा है, Cd has a 2 plus charge. Ag, if 1 Cd plus has to come in, 2 Ag plus have to go out. बट दो तो नहीं जाएंगे, एक ही जाएगा। क्यों? चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए। रिमेंबर, अगर Cd प्लस आ रहा है तो एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आया, 1 extra positive charge comes in, okay, from 1 Cd2 plus. Although it looks like initially Cd plus charge twice of that of Ag plus, तो ठीक है, बट जब वो आया तो एक्स्ट्रा चार्ज हुआ एक, क्योंकि एक चला भी तो गया, है ना? जब Cd plus आया, Cd2 plus आया तो Ag plus चला गया, तो कितने Ag plus जाएंगे? That's what we're trying to figure out. Okay, so the only thing that makes sense is cationic vacancy is equal to number of Cd2 plus ions will be incorporated. क्यों? क्योंकि Ag plus गया, उसका एक चार्ज चला गया, now this guy comes in and then another Ag plus has to go out because charge has to be neutral. ठीक है? तो is it A or is it B? What do you think? Sheikh Aslam, I'm good. Chandam Maurya is saying B. Is it A or is it B? What do you think? Option A is imposter. सोच के बताओ दोस्तों. Is there a divergence on this one? It contains a little bit of CdCl2, So Raj is very confident about A. So is everybody else. अब A ही लग रहा है. चंदा को भी B लग रहा है. Converge कर लो यार. चंदा, what do you think? Azhar also still thinks it's B. सोचना पड़ेगा. Net vacancies is N. Okay. अभी भी आप लोग बोल रहे हो कि A और B में कुछ डाउट है. Cationic vacancies equal to Cd2 plus or cationic vacancies double
द नंबर ऑफ C2+ आयंस। देखो हम लोग वैकेंसी की बात कर रहे हैं, ओके, वी आर नॉट काउंटिंग कि कितने Ag+ आयंस गए और कितने Cd+ आए। इफ यू काउंट दैट, देन दैट विल बी कि अच्छा 2 Ag+ जाएंगे तभी एक आएगा, बट वैकेंसी तो एक ही क्रिएट हुई ना। थिंक अबाउट लाइक दिस, थिंक अबाउट लाइक दिस, सोचो सोचो। ठीक है, मान लेते हैं कि 2 Ag+ गए और एक Cd+ आया, वैकेंसी कितनी हुई? आई एम अज्यूमिंग यू शाउटिंग एक, या युवराज इज डैम कॉन्फिडेंट, माय म्यूजिक इज आल्सो सेइंग एक। यू गुड डूड? या एग्जैक्टली मयूक, लेट्स रीड व्हाट मयूक इज सेइंग, आई लाइक व्हाट ही सेड। दो गया, एक आया, एक खाली, खाली एक है ना? तो cationic vacancies equal to number of CD2+ ions incorporated is the right answer. That's my take on this. अगर आपको अभी भी बी लगता है, थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा, बट ये इज आई टोल्ड यू इट इज अ गुड क्वेश्चन। इसमें हम लोग सोच सकते हैं, मैथ्स नहीं होगा बट दिमाग लगाने वाला पड़ेगा। समझ में आ रहा है, राइट? आई रिपीट इट वन मोर टाइम। CD2+ एक आया, 2 Ag+ गए, उनमें से एक की जगह CD2+ ले लेता है। आई रिपीट दैट इन इंग्लिश। CD2+ comes in, 2 Ag+ ions go out. This CD2+ takes the spot of one of those Ag+ ions. So, one vacancy is created. Okay? हिंदी में फिर से बोलता हूं, एक वैकेंसी हो गई क्रिएट। Hence, the one that makes sense is cationic vacancies equal to number of CD+ ions incorporated. Beautiful question, right? All right. Yeah, जरूर आ सकता है। You did it yesterday, युवराज। Excellent work, excellent work. बाकी दोस्त लोग जो बी बोल रहे थे, इज ओके। देखो हम लोग कोई जल्दी में नहीं है, पीवाईक्यू वाला सेशन नहीं है जहां हम लोग जल्दी 10 सवाल करेंगे, ना ना दैट। हम लोग आराम से ठीक से पढ़ के जाएं, खत्म करके जाएंगे। अजहर, यू आर सेइंग बी, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज। ए चंदा, ठीक है, इज दैट ओके? कोई डाउट है तो पूछ लो, आराम से पढ़ाएंगे, नो टेंशन, ठीक है? ओके, स्वीट। चलो, वी गोना टेक इट अप अ नॉच अ लिटिल बिट, ठीक है? अरे नहीं, सॉरी और बिल्कुल नहीं, मेरा गोल है आप समझ के जाए। एक बार सवाल सही बोला, गलत दिया, डज नॉट मैटर वन बिट। I just want to make sure that at the end of the day you understand. Yeah, that is the goal that we have at Aakash BYJU'S NEET collectively. ठीक है? So we want you to top NEET. We want you to reach your goal, whatever your goal may be. NEET हो, जो भी exam हो. And FCC lattice has a lattice parameter A equal to 400 picometer. Calculate the molar volume of the lattice including all the empty spaces. Some empty space ले लो और calculate करो molar volume. How do you do this? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, युवराज बताइए कैसे किया जाए इसको, कैसे किया जाए? मोलार वॉल्यूम, ये तो हमने गैस में पढ़ा था ना। मोलार वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? एक छोटी चीज दैट यू शुड डू एज ऑलवेज, 400 पिकोमीटर को तुरंत करो तुम लोग, करने में सेंटीमीटर है, लाइफ विल बी इजी। क्यों? क्योंकि देखो यार, ml यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। हिंट दे रहा हूं, हेल्प कर रहा हूं थोड़ा सा। ककाशी, वाओ ब्रो, वाओ, लुक एट दैट। ककाशी, पूनम एंड शेख, अरसलन, बहुत जल्दी जल्दी आंसर देते हुए। आई लाइक इट, आई लाइक इट। सही है, सही है, गुड कंसेप्ट, दैट्स ग्रेट। पहला स्टेप, कन्वर्ट इट टू सेंटीमीटर बिकॉज द ऑप्शंस आर इन सेंटीमीटर क्यूब। ml, राइट? मिलीलीटर इज सेंटीमीटर क्यूब। ओके, मोला वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ स्टफ। एफसीसी है, 4 पार्टिकल्स होंगे, यही सब यूज करना है, यही सब यूज करना है। व्हाट डू यू थिंक, कैसे करोगे इसको आगे? चंदा, ओके, गुड गुड दैट यू फॉलो। एक और हिंट दूं, एक और हिंट दूं। देखो, एक सेल एफसीसी में होते हैं 4 पार्टिकल्स, ओके? तो Na/4 cells will give you 1 mole of particles. ये वाला समझ में आ रहा है? Because one cell of FCC would have 4 particles. That means Na/4 cells would have 1 mole particles. 1 mole क्या है? 1 mole is Na atoms, right? Kanchan ji, you'll have to check the site out here. Not something that I am aware of at the top of my head. Not something that I know for sure. Yeah. It's okay. Don't worry about it. Kakashi, ये सब अंग्रेजी से कोई फर्क नहीं पड़ता है. Doesn't matter. भावना समझ में आ रही है, चलता है. Doesn't matter. Okay. Yeah, Saloni probably knows because they've
paid for it, I guess. So that's great. Thanks for that info. Mayuk is saying D. Kanchan is saying A. ठीक है, आगे देखते हैं. Na/4 cells is 1 mole. ये वाला पार्ट समझ में आया? तो वॉल्यूम कितना होगा? A क्यूब टाइम्स Na/4. क्यों? क्योंकि A क्यूब तो था एक सेल का, टाइम्स Na/4 होगा Na/4 सेल्स का. That's it. फिर ये था A. This is A. A cube is this. And again what happens is things get cancelled out. Na 6 into 10 power 24, 23, 6 into 10 power 23, और ये क्यूब होगा 4 क्यूब, मतलब कि जो भी होगा 64 into 10 power minus 24, कैंसिल हो गया, नीचे भी एक 4 है, बचा क्या 16 into 6 into 10 power minus 1 ml, यानी कि 96/10 which is 9.6 ml. Cool. Option D for sure. Okay. Yeah. Cool. Do you guys see how D is the answer? सिंपल सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा ध्यान से करने वाला है, राइट? इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज डर लग जाता है कि अरे एफसीसी लैटिस तो समझ में आता है, बट ये मोलार वॉल्यूम कहां से आया, राइट? तो फर्स्ट प्रिंसिपल करने वाली चीज है. रिवाइज करता हूं एक बार. मोलार वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 मोल, we converted that 400 picometer to centimeter because answer was in ml. Then we said कि देखो एक एफसीसी में होते हैं 4 एटम, मतलब कि Na/4 सेल्स में होंगे 1 मोल, है ना? दैट्स इट. And then volume of that कितना होगा? Volume A cube into Na/4. फिर करो calculate. Okay, sweet. All right. Let's go to the next question. 9.6 ml. Here you go. Titanium metal has a density. एक और density का सवाल आ गया. Has crept in. Titanium metal has a density of 4.54 gram per centimeter cube and an edge length of 412.6 picometer. In what cubic unit cell does titanium crystallize? अच्छा. This question is a little bit easier than the first question we did. उस first question में आपको निकालना था कि किस टाइप का यूनिट सेल होगा. You'll have to find out what kind of unit cell it was, and then from that you can calculate radius. इधर radius तो पूछा ही नहीं है, तो this is only one half of that question, right? Let's try this one out. I'll give you a bit more of a hint. FCC मतलब कि 4, BCC मतलब 2, simple Q मतलब 1. Need more information? नहीं, you don't need more information for sure. इतने से हो जाएगा भाई. सवाल हमने भी किया तो है. We did a more difficult question. ये तो हो जाएगा आसानी से. Try it out. First step, as always, convert picometer to centimeter. है ना? लिख लो. ठीक है? And then it becomes 412 becomes 4.12 into 10 power minus 8 centimeter. If you want that number, that's all it becomes. So 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ एक्सपोनेंट्स बहुत यूज आ रहा होगा अभी लाइफ में. 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था एक्सपोनेंट्स, याद है? 8th में पढ़ा था आपने. सलोनी इज सेइंग पूरे साल का. अरे यार सलोनी, मुझे लगा आप सवाल का जवाब दे रही थी. आप तो जवाब बहुत जल्दी दे रही थी. लेट्स फोकस ऑन दिस. वो तो आप बात कर लेना इन दोस्तों से. यू कैन एक्सचेंज सोशल एंड ऑल, यू टॉक आराम से. चंदा इज सेइंग ए. लेट्स फोकस ऑन दिस. आराम से सीख के जाइए आप यहाँ से. And sure, you can definitely, I think there's a link in the description. उससे आपको, you can also do this. Anthe and all is going on, right? You can give the test also, and that gives you scholarship, right? Saloni and anybody else who wants to, do this right now, description में links है. Check that out. ठीक है? Okay, I'll leave Anthe on this. Cool. पक्का ये होगा? अच्छा. अजहर, पूनम, मयूक, राघव, Saloni also is saying, hey, चंदा ने सबसे पहले बोल चुके हैं. ठीक है, बढ़िया. So how do we do this? Okay, same चीज as before यार. n into 48 divided by a cube times na will be equal to density, right? That's all I've written over here. अब फिर उसके बाद कैलकुलेट करने वाली बात है ना? ये लिख दिया n and all of this. अब यार ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको क्या करें? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग तो रहा है, but you do your beautiful thing here. You approximate, like shamelessly approximate. I'll show you how shameless. दिखाता हूँ मैं तुमको. देखो ये this you can take 4.12 ले लो 4, ठीक है? Take it as 4 cube, okay? And ये कर लो into 6, और ये ले लो कि सेम ही है, 1/10 हो गया, ठीक है? और ये बन गया 1/100. ये 1/100 into 64 into 6. अब तुम इतना जो है गया गुजरा हुआ अभी अप्रोक्सीमेशन करने पे, you get this to approximately 3.8 which is 4, ठीक है? Be smart. जब पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हो, ओके? नीट में 100% पॉसिबल है.
जेई मेन में आई वुड सजेस्ट कि यूज इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि उसमें कुछ न्यूमेरिकल आंसर्स होते हैं ना, तो हर जगह अप्रोक्सीमेशन में नॉट वर्क। बट यार जेई मेन में कैलकुलेटर भी होता है, आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं है, अप्रोक्सीमेशन करो, करो आराम से करो, ठीक है। आपका पेपर चल रहा है, ओके ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर मयूख। एब्सोल्युटली, मैंने भी वही किया, हाई फाइव मयूख। आई डिड द सेम थिंग। If you do it properly, I guess you will get 4. Because we can put it in the calculator and do it. 4.12. Here's my awesome FX 991 ES engineering के दिनों से। Engineering में सबसे best thing I bought was this calculator. 4.12 cube times 6 times 4.54 divided by 48. हाँ 3.968 आता है, 3.968 आता है, या 3.968 इफ यू डू इट दिस वे। बट इट्स ओके यार, बिना उसके भी हमको 3.8 आ गया, जल्दी से करने वाला सवाल था। Excellent work, everybody. You're all so brilliant, man. I got pretty interesting question, but you're figuring it out. That's good. That's good. Kanchan, absolutely right. A was the right answer there. चलो, लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है शायद अब आज का। हाँ दोस्तों, आखिरी सवाल है। Let's try it out. In a compound, oxide ions are arranged in cubic closed packing arrangement. Cations A occupy 1/6 of the tetrahedral voids. Cations B occupy 1/3 of the octahedral voids. The formula of the compound is what? Try करो। नहीं, कैलकुलेटर नहीं चाहिए, इसलिए मैं कैलकुलेटर नहीं निकाला। विदाउट कैलकुलेटर मैंने आपके साथ सॉल्व किया, बट मयूख ने बोला यार 3 पॉइंट रहा तो चलो चेक कर लेते हैं। बट देखो मैंने बिना कैलकुलेटर आपको दिखाया सारा, टिल नाउ हमने कैलकुलेटर यूज किया नहीं, एटलीस्ट मैंने किया ऑब्वियसली, बट आई शोड यू हाउ टू डू इट विदाउट इट, राइट? आई शोड यू अप्रॉक्सीमेशन एज वेल हाउ टू डू इट। ABO3 पक्का मयूख बोल रहे हैं। व्हाट डू यू गाइस थिंक? व्हाट रेस्ट ऑफ यू थिंक? कैलकुलेटर बिना करेंगे सारे सवाल, and that's the beautiful thing. No crazy equation, nothing. बहुत chill है solid state. I proved it to you with this whole session कि कोई fancy equation की जरूरत नहीं है, बस density जो आप लोग सीखे थे कुछ 6th standard में उसकी जरूरत है। density is mass by volume, कुछ नहीं है, बस वही तो है। I'm not belittling the chapter anyway. I'm saying that it's very doable. Yeah, I have all the utmost respect for it, but also you got to figure out how to go to the next nooks and corners and figure it out. खैर, ऑप्शन डी पक्का मयूख बोल रहे हैं, Poonam is saying D, Dr. G is saying A, Imam Ji, Kanchan is saying A, Aarti is saying hi. Aarti, you come at the end of the session all the time. What's that about? Kakashi is saying D को लॉक किया जाए। चलिए। आरती भी तुरंत बोलते हुए D is the right answer. all right. So how do you do this? How do you do this? Look, ऑक्सीजन कहाँ पे है? ऑक्साइड आयंस CCP में है। अच्छा, CCP यानी कि वो है उसका सारे कॉर्नर में और सारे फेस सेंटर में। कॉर्नर एटम मतलब 8 into 1/8 और फेस सेंटर मतलब 6 into 1/2, मतलब टोटली 4। ठीक है, 4। क्विकली कर भी लिया फिर से। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? सेम एज n, राइट, व्हिच मींस 4। टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं 2n यानी कि 8। ओके, लेट्स राइट दैट डाउन। नाउ ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड्स का क्या फंडा था? A is 1/6 of tetrahedral voids, मतलब 1/6 into 8 है ना, तो ये हो गया 4/3। और B कितना है? 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सो 1/3 into 4 मतलब 4/3। अब हमको बस रेशियो निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? ABO, उसी रेशियो निकालते ABO। सो 4:3, 4:4। अरे ये तो सिंपल लग रहा है। तो मतलब इफ आई मल्टीप्लाई एवरीथिंग विद 3, 4 तो गेट्स कैंसिल आउट, 4 तो हो गया कैंसिल। आई मल्टीप्लाई एवरीथिंग विद 3, बन जाता है हमारा ABO3। ठीक है, ऑल राइट। सेवेंथ में पढ़ा था? अच्छा यार, मुझे तो 8th याद है। अच्छा है आपने 7th में पढ़ा तो यार। Awesome, Chanda, Kanchan, Aarti and everybody else who have solved this. Excellent work, everybody. मजा आया ना? काफी एक्शन पैक सेशन। या वी वेंट स्लो इन दिस वन, आराम से हमने पूरा चैप्टर किया। एंड नाउ विद दिस आई थिंक यू आर सेट विद सॉलिड स्टेट। ऑल्दो हम लोग एक और सेशन करेंगे जस्ट टू मेक श्योर। द नेक्स्ट वन वी विल टेक इट अप अ नॉच अ लिटिल बिट एंड हम लोग करेंगे, विल मीट ऑन सैटरडे टू सॉलिड स्टेट। ऐसा ही हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का भी करेंगे ऑन सैटरडे। मोल कॉन्सेप्ट में वी विल डू द मोलैरिटी वाला पार्ट, मोल फ्रैक्शन वाला, और उसके नेक्स्ट वाले सेशन में विच इज ऑन ट्यूसडे, आगे की बात है आई नो, वी विल डू मिक्सिंग मोलैरिटी एटसेट्रा सॉल्यूशन वाले। तो मजा आ रहा है ना इन सेशन में? इफ यू लाइक दिस कमेंट में प्लीज लेट अस नो इफ यू वांट अस टू मोर ऑफ दीस क्वेश्चन सॉल्विंग फोकस सेशंस। ऑलराइट, चलो एग्जैक्टली मयूर मोल कॉन्सेप्ट करेंगे अगली बार। ये कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट विल आल्सो डू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस एंड मोल कॉन्सेप्ट ऑन सैटरडे। दैट्स व्हेन आई मीट यू गाइस नेक्स्ट फॉर दिस। कल तो पीवाईक्यू सेशन है ही, क्वेश्चन ही करते जाएंगे। क्वेश्चन रिपीट कर दें सलोनी, कौन सा क्वेश्चन रिपीट कर दें? ये वाला, ठीक है सलोनी, जरूर। द डील विद दिस इज यू गॉट ऑक्साइड आयंस इन CCP,
सीसीपी यानी कि एफसीसी सेम चीज है, क्यूबिक क्लोज स्लॉट पैकिंग सेम एज एफसीसी। उसका मतलब है कि ऑक्साइड आयंस होंगे। लेट मी ब्रिंग दैट अप फॉर सलोनी एंड एवरीबॉडी एल्स हु थॉट दैट ये वाला थोड़ा जल्दी चला गया, उनको दिखा देते एक बार फिर से। देखो ये है आपका सीसीपी, राइट? पुराने सवाल से आपको दिखा रहा हूं। सीसीपी यानी कि जो लाल और हरे, बोथ ऑफ दिस इज ऑक्सीजन, दोनों में ऑक्सीजन है। और जो वॉइड्स हैं, वॉइड्स में है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स में बाकी एटम्स बी और ए। वॉइड्स कहां हैं? रुको, वॉइड्स भी दिखाते हैं आपको। ये हैं आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, येलो वाले। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के कुछ फैक्टर में है वन कंपाउंड, एंड नॉट ऑल ऑफ देम आर फिल्ड, ओनली सम ऑफ देम आर फिल्ड, ओके। और सिमिलरली जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, उसके कुछ फ्रैक्शन आर फिल्ड बाय द अदर गाय। तो मतलब पूरा नहीं भर रहा है। Like there is anti-fluoride structure, fluoride structure. You can look up all these different kind of structures. In fact, I think there is a titanium का compound that forms this AbO3 specifically. TI क्या था? barium TaIO3. I think this is a compound that exactly shows this. Exactly. This is not a hypothetical compound, since by the way. Yeah, ठीक है? मजा, मुझे बहुत मजा आया. Oh, regular academic classes of 11. Oh, okay, Mayuk. Yeah, sure. We'll do those as well. We'll do those as well. We'll finish up a couple of these questions because a lot of you said that since मैंने specifically ये वाला नहीं पढ़ाए थे, you want me to do this atomic structure etc. मैंने सोचा सारे सवाल कर लेते, एक दो हफ्ते में we'll do as many as we can. ठीक है, चलो Saloni, I hope that helped. Okay, look up barium titanate if you want to know more about this sort of a structure. It has a special name, spinal, anti-spinal etc. etc. देख लेना बाद में. चलो, bye. This was awesome as always. Have a great Thursday. There are a couple of more sessions coming up on this channel. प्लीज देख लेना, PYQs and amazing sessions, अभी भी 7:15 पे सवाल एक सेशन है। चलो, हैव फन, आई विल सी यू टुमारो फॉर PYQs, ऑलराइट? बाय। PYQs कौन से? बॉन्डिंग के, योर फेवरेट चैप्टर। बाय बाय। बहुत सवाल आते हैं, फेवरेट होना ही चाहिए। गुड नाइट, सी यू ऑल।